Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Aslan Satti and I am back with another very informative video regarding the entrance test examination for the Faculty of Engineering and Technology for the programs of BS Electrical Engineering, Computer Engineering, BTech programs, Bachelors of Civil and Mechanical Engineering and BTech programs related to Civil and Mechanical Engineering. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट पैटर्न क्या होगा फॉर ऑल दीज अंडर प्रोग्राम्स ऑफ द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और उनके अंदर किस पोर्शन की कितनी वेटेज होगी और उसके अंदर जो है उसका क्या सैम्पल पेपर होगा वो भी हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे आगे इंशाल्लाह। सो जैसा कि मैंने आपके सामने ये टेस्ट शेड्यूल ओपन किया हुआ है, सो दे आर हैविंग 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 15 फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग and 15 questions from logical reasoning. So the total number of MCQs in this test will be 50 and the total time here will be 60 minutes and it will be a computer based test and most of the students are having their test from 5th of August 2024. So without wasting any time, let's solve a sample paper regarding physics, logical reasoning and English of the Faculty of Engineering and Technology programs of IIUI. So students, first I will be solving the questions from the physics section of the entrance test examination of the Faculty of Engineering and Technology IIUI. So as I have told you earlier that there will be 10 questions from the subject of physics. तो पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है which one of the following is not a unit of length. So angstrom is a unit of length, micron is a unit of length, light year is also a unit of length. The distance light covers in 1 year is known as light year. So radian here is the right choice because it is not a unit of length. Radian जो है वो यूनिट है एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास. So next question में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है in which quadrant the two rectangular components have a vector have a same sign. So we all know that in the first quadrant दोनों components का साइन पॉजिटिव होता है और in the third quadrant दोनों components का साइन जो है वो नेगेटिव होता है. So the right choice here is option C, both first and third quadrant. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय. सो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय देयर क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू द एज मैग्नीट्यूड इनटू बीज मैग्नीट्यूड and cos of angle between them. So you can find out the angle between the vectors using the cross product. So बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है थ्री कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, दे शुड देयरफॉर बी. देखो बच्चों, कोप्लेनर फोर्सेज का मतलब ये है कि दे आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन. सो टू कीप अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दोज फोर्सेज शुड बी कंकरेंट, दे शुड बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. सो द फोर्सेज शुड बी कंकरेंट टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. सो मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. यहाँ पे टाइम होगा ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द डिपेंडेंट एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस देयर विल बी velocity. So velocity time graph basically gives you distance, so it provides you with distance. So here distance is the right choice. You also know that velocity is equal to distance divided by time. So in the graph when velocity and time will get multiplied one another, so this will become velocity into time as well. So next question में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है when a car takes turn around a curved road, the passengers feel a force acting on them in a direction away from the center of the curve. It is due to the. So इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि जब एक गाड़ी एक कर्व रोड के ऊपर चलती है तो जो उसके अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको फोर्स इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व लगती है. सो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट attracts the body, it keeps the body in a circular, moving in a circular path. So इसकी ऑपोजिट जो फोर्स होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनर साइड पे होती है, तो इसकी ऑपोजिट जो फोर्स होती है जो कि बॉडी को आउटसाइड द सर्कल के लिए बैलेंस करवा रही होती है, जो इसकी ऑपोजिट रिएक्शनल या बैलेंसिंग फोर्स है एंड दैट इज ड्यू टू इनर्शिया. सो वो फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है. सो ड्यू टू इनर्शिया the passengers inside a car feel the centrifugal force which move them in a direction away from the center of the curve. So next question में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है two automobiles are 150 kilometers apart traveling toward each other. So दो गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर्स है और they are traveling toward one another. So one
automobile is moving at a speed of 60 kilometers per hour, whereas the other one is moving at 40 kilometers per hour. So after how many hours will they meet? So here the relative velocity will be the sum of the both individual velocity because they both are moving towards one another. So the relative velocity here will be v1 plus v2, which will be 40 plus 60. So 40 plus 60 will be 100 kilometers per hour will be the relative velocity. So we know that velocity is equal to distance by time. To find out time, I'll take time on the other side. Time हो जाएगा हमारे पास distance divided by velocity. So distance जो है वो यहाँ पे 150 किलोमीटर था और velocity here is 100. So this will become 1.5 hours. So the time will be 1.5 hours. Yes, option D here is the right choice. So moving on to the next question. Next question में examiner आपसे पूछ रहा है if a body of mass 10 kg is allowed to fall freely, what its weight become? We know that weight का जो formula होता है W is equal to mg होता है. So mass here is given 10 kg and the value of gravitational acceleration is 9.8. So after taking the product, the answer will be 98 newtons. So option B here is the right choice. Moving on to the next question. Next question में examiner आपसे पूछा the diagram represents a straight line motion of a car. Which of the following statements is true? The car accelerates, stops and reverse. देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव ग्राफ नहीं है, नेगेटिव पोर्शन नहीं है ग्राफ का, वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो नहीं दिख रहा हमारे पास. ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कार रिवर्स हुई है. सो वी हैव नो इन्फॉर्मेशन कि कार रिवर्स हुई है. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. सो नेक्स्ट ऑप्शन बी में आपको कह रहा था कार एक्सेलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड्स. अगर आप फर्स्ट 2 सेकंड्स में देखो तो फर्स्ट 2 सेकंड्स में अगर हम उसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है. दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी हियर आफ्टर 12 आफ्टर 2 सेकंड्स इज 12 एंड इट स्टार्टेड डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट वो जो कि 0 में थी इनिशियल वेलोसिटी और आपका टाइम 2 सेकंड्स लगा है इसमें. सो दैट इज 12/2 एंड 12/2 एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड्स इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन बी. आप बेशक ऑप्शन सी को भी चेक कर लो, ऑप्शन डी को भी चेक कर लो, दे आर इनकरेक्ट. व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू. द कार इज मूविंग फॉर अ टोटल टाइम ऑफ 12 सेकंड. नो, वी हैव अ ग्राफ जिसमें हमारे पास उसका 9 सेकंड्स का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है. सो हमें ये पता है कि वो 9 सेकंड्स के लिए मूव कर रहा है, नॉट फॉर द 12 सेकंड. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द कार decelerates at 12 मीटर पर सेकंड फॉर द लास्ट 4 सेकंड. अगर आप इन लास्ट 4 सेकंड्स को देखते हो तो 5 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक ये हमारे पास 4 सेकंड बनते हैं. ऑल्दो कार ने डिसेलरेट किया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन उसने शो की है, इसने ब्रेक अप्लाई की होंगी, गाड़ी रुक गई है. हुआ क्या है यहाँ पे हुआ ये है कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो है आपके पास 0. सो फाइनल वेलोसिटी हियर इन दिस केस इज 0. initial velocity is minus 12. Time here is 4 seconds. Why 4 seconds? Because 9 minus 5 4 seconds. So minus 12 by 4 मैं करूँगा. So the negative acceleration here is 3 meters per second square and it is not 12 meters per second square. So ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट नहीं था. So the right choice here was option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द फिजिक्स सेक्शन. वेरी इजी क्वेश्चन. एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड. सो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड सफेगैमोमैनोमीटर. राइट. सो दिस इज द राइट चॉइस. वेंचुरी मीटर जो है ऑल्दो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर की जो स्पेसिफिक डिवाइस होती है उसका नाम जो होता है वो सफेगैमोमैनोमीटर होता है. उसको ब्लड प्रेशर मीटर हम आम जुबान में कहते हैं, उसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं है. वेंचुरी मीटर तो किसी भी फ्लूइड का कर रहा होता है और स्पेसिफिकली जो ब्लड प्रेशर के लिए डिवाइस है वो सफेगैमोमैनोमीटर. और सोनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द साउंड, यूज्ड टू मेजर द साउंड. राइट. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन. So students, let's move on to the English section of this paper. So first question जो English का उसमें पूछा था, servant complies dash the wishes of his master. The servant complies with the wishes of his master is the right choice here. In the next question, the examiner is asking, he was appointed dash the post of section officer. He was appointed to the post of the section officer होना चाहिए यहाँ पे. So option B is the right choice. एंटोनिम ऑफ नेपोटिज्म. देखो बच्चों, नेपोटिज्म का मतलब होता है अकरबा परवरी, यानी अपने दोस्तों को जो है वो
वो मेरिट पे ना भी आ रहे हो तो उनको सपोर्ट करना या अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करना। अगर आपके पास अथॉरिटी थी किसी को जॉब लगाने की लेट से, और मैं उन लोगों को नहीं खुदा ना खास्ता सपोर्ट करता जो मेरिट पे हैं, बल्कि जो है वो उन लोगों को एक बंदा जो है वो सपोर्ट करता है या उनको जॉब दे देता है जो उसके जानने वाले थे। सो दिस इज़ नोन एज नेपोटिज्म, अकरबा परवरी जिसको आप उर्दू में कहते हो। तो इसका जो एंटोनिम यानी जो उसका अपोजिट होगा वो होगा इम्पार्शियल, यानी आप किसी के साथ कोई जो है किसी पार्टी के साथ आप साइड मत लें, इम्पार्शियल होकर डिसीजन लें, ठीक है, किसी रिश्तेदारी या दोस्ती यारी का लिहाज मत करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछा है सिनोनिम ऑफ एनोमलीज। एनोमली का मतलब होता है अ स्ट्रेंज बिहेवियर, ऐसी चीज जो कि रेगुलर से हट के हो। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन सी, इरेगुलरिटी। So in the next question, the examiner is asking, they went dash the rain. They went despite the rain should be the right choice here. कि बारिश के बावजूद वो लोग चले गए. So moving on to the next question, the examiner says she always jumps dash the conclusion. वो हमेशा नतीजे पे आ जाती है, नतीजे की तरफ जंप करती है. She always jumps to the conclusion. So the next question, the examiner says the movie was dash. The movie was exciting. मूवी जो थी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी. सो ऑप्शन सी द राइट चॉइस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 90, so moving on to the question number 8 of our English section. If you study hard you will pass. If you will study hard you will pass. वो उसको बता रहे हैं कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे. फ्यूचर की बात हो रही है, you will pass. So the next question, इसमें आपने इसका indirect form बतानी है. He said to me who is going with me. So चूंकि यहाँ पे said है, so we will change the next one into the past or the second form of verb, right? So he asked me who was going with him. So he ने पूछा है तो him में change होना चाहिए. So option A here is the right choice. He asked me who was going with him. So इस was में क्यों change होगा, क्योंकि पीछे हमारे पास said है, second form of verb है. So the last question of the English section, the examiner is asking, I said to him, you are not a man of words. So I told him that you are will change into verb because I have told you in the last question said है तो second form of verb आएगा were not a man. I said to him that he wasn't, sorry. So I said to him, the right choice should be I told him that he was not a man of words. ठीक है, so he was not the man of words. Was में change होगा. Why? Because said है. So he wasn't not a man of words. So this was all from the English section. Now let's move on to the logical section of this paper. सो लॉजिकल सेक्शन में आपके पास पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे. मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन को कंपाइल अप किया आपके लिए, उसी लेवल के या उसी तरह के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द लॉजिकल सेक्शन के अंदर आपके पास एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन है. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब है कि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, सिम्बल्स भी हैं. सो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय द सिंबल. पूछ रहा है कि वॉवल्स जहाँ पे जो सीरीज के अंदर गिवन है उनमें से कितने वॉवल्स के पहले एक सिंबल यूज हुआ है. देखो ए वॉवल है, ई भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, आई भी वॉवल है, बट ए से पहले कोई सिंबल यूज नहीं हो रहा, उसके बाद हो रहा है. क्वेश्चन यहाँ पे कि कितने वॉवल से पहले सिंबल यूज हुआ है. तो यहाँ पे ई से पहले एक सिंबल यूज हुआ है एंड का, और यू से पहले हैशटैग का सिंबल यूज हुआ है. सो देयर आर 2 वॉवल्स इन दिस सीरीज जिनसे पहले एक सिंबल जो है वो यूज हुआ है. सो व्हाट इज विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट. सो एग्जामिनर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आप राइट से काउंटिंग करो, सो राइट से जो सिक्स्थ एलिमेंट है, सिक्स्थ एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, उसके लेफ्ट के ऊपर. सो एन हेयर इज द राइट चॉइस. वाई? देखो अगर मैं राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ चॉइस बनती है राइट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ. सो राइट के बाद जो सेकंड मेरे पास यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जो सेकंड बन रहा है, अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो अब 6 नंबर से जो सेकंड बन रहा है दैट इज एन. सो राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर आपने मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज बताने हैं. सो अगर मैं सीरीज को क्रैक करूँ तो यहाँ पे ए बी डी है, सी इसमें से मिसिंग है, ई एफ जी फिर अगेन मिसिंग है और एच है, आई जे. तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि जो उसने ऑर्डर बनाया हुआ है उसमें तो जो थर्ड नंबर वाला अल्फाबेट है वो मिसिंग है. मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन करके लिखा भी हुआ है
कि पहले जो वाले के अंदर से जो है वो सी मिसिंग है, फर्स्ट पेयर के अंदर से, सेकंड के अंदर से जी मिसिंग है, और फाइनल पेयर के अंदर जो है हमारे पास जो है वो क्या मिसिंग होना चाहिए यहाँ पे फाइनल पेयर अगर मैं देखूंगा तो इसके बाद आएगा, तो टी के बाद जो नंबर आएंगे वो आना चाहिए था मेरे पास यू वी, यू वी थर्ड वाला मिसिंग हो जाएगा, यानी डब्ल्यू जो है वो मिसिंग हो जाएगा और एक्स आएगा, सो डब्ल्यू शुड बी मिसिंग हियर, द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे अगेन एक और सीरीज आपके पास गिवन है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो मिस होकर सीरीज बन गई है। सो ए के अंदर से बी जो है वो मिसिंग है, डी मिसिंग है, ए सी ई को उसने लिया हुआ है। सो इसके बाद ई के बाद क्या आएगा, एफ शुड बी मिसिंग, यहाँ पे आना चाहिए जी, एच शुड बी मिसिंग आई, और जे शुड बी मिसिंग, मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो के, सो द राइट option here is option number 1, that is GIK. So moving on to question number 5 and question number 6. So there is a numerical series given below और उसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है when all the digits in each of the given numbers are arranged in ascending order. ascending order का मतलब है कि अगर हम इनको अरेंज करते हैं छोटे से बड़े नंबर की तरफ, so which number becomes the highest, तो इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा। so पहला नंबर यहाँ पे है 435, 435 को मैं अरेंज करूंगा, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब जाएगा तो ये आ जाएगा 3, 4 और 5। 2 to 4 को जब मैं अरेंज करूंगा तो इसमें 2 to 4 ही रहना है। जब मैं 786 को अरेंज करूंगा तो दिस विल बिकम 6, 7, 8। जब मैं 823 को करूंगा तो दिस विल बिकम 2, 3 एंड 8। और क्वेश्चन नंबर सॉरी जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है उसको जब मैं अरेंज करूंगा तो दैट विल बी 0, 2, 9। तो सबसे बड़ा जो है वो 6, 7, 8 बन रहा है, जो कि 786 की अरेंजमेंट के ऊपर बन रहा है। द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसी सीरीज के अंदर जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो हर एक के साथ तो किसकी प्रोडक्ट सबसे लोवेस्ट आएगी। तो बच्चों 902 की प्रोडक्ट लोवेस्ट आएगी, क्यों, क्योंकि जब आप 9 इंटू 0 इंटू 2 करोगे तो दिस होल टर्म विल बिकम 0, सो दिस वन विल गिव यू द लोवेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस find the pair which is similar to the given pair. So 4 और 8 they are the numbers जो कि स्केयर हैं और क्यूब हैं 2 का, मैंने इसको क्रैक किया। सो यहाँ पे अगर 27 देखा जाए और रेशो 9 देखा जाए तो इज द राइट चॉइस। वाई, बिकॉज एक 3 का क्यूब पड़ा हुआ है और एक 3 का स्केयर पड़ा हुआ है, तो ये भी 2 का क्यूब और 2 का स्केयर पड़ा हुआ था। सो द राइट ऑप्शन हियर इज 27 एंड 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द ऑड वन आउट। सो पहले तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप आपस में है क्या है। बांग्लादेश टका, सो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है, ब्राज़ील की जो करेंसी है वो रियल है, साइप्रस डॉलर, साइप्रस जो है उसकी जो करेंसी है वो डॉलर नहीं है, उसकी करेंसी जो है वो यूरो है। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर 3। सो ईरान की भी करेंसी ईरानी रियाल है, जापानीज़ करेंसी भी जापानीज़ येन है, तो बाकी सब ठीक हैं। साइप्रस की करेंसी इज नॉट डॉलर, उसकी करेंसी इज यूरो। सो व्हाट शैल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए। सो फ्लो रिवर, इनका रिलेशनशिप क्या बनता है कि रिवर के अंदर वाटर जो है वो फ्लो करता है और स्टेगनेंट रहता है वाटर, किसमें, कैनाल में नहीं, कैनाल तो नहर होती है पानी फ्लो करता है, डैम के अंदर भी पानी फ्लो कर रहा होता है, ओशंस के अंदर तो डेफिनेटली करता है, सीज के अंदर भी करता है। सो पूल जो होता है, एक तालाब जो है उसके अंदर जो पानी एक जगह पे खड़ा हुआ है वो एक जगह पे स्टैगनेंट रहता है, यानी रुका हुआ पानी, ठीक है, रुका हुआ, स्टैगनेंट का मतलब है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4। सो द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लॉजिकल पोर्शन फॉर द टुडेज लेक्चर इज, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन पेयर्स। इन गिवन पेयर्स के अंदर आपके पास ऑड वन कौन सा है आपने ये बताना है। सो यहाँ पे हमारे पास 5:15 है पहले, फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो 24:70 है, फिर हमारे पास 33:9 है, फिर हमारे पास 121:363 और 1:3 है। तो अगर आप इनका पैटर्न ऑब्जर्व करो तो सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर का थ्राइस है, यानी उसका 3 टाइम्स मल्टीपल है। 5 है पहला नंबर, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर जो है जब मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 बनता है। यहाँ पे भी ये हो रहा है 33 फर्स्ट नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 बन रहा है, 121 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 363 बन रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन रहा है, 24 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सो राइट चॉइस हियर इज जो ऑड वन बनता है यहाँ पे वो 24:7 है, क्योंकि 24 का 3 टाइम्स 72 होता है, ना कि
70 होता है. So this one was the odd choice. So this was all related to the Islamics. जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर टेस्ट होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. एक दफ़ा दोबारा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यू विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस और आपके पास 1 घंटा होगा. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. 10 विल बी फ्रॉम फिजिक्स, 10 विल बी फ्रॉम इंग्लिश, 15 फ्रॉम लॉजिकल एंड 15 फ्रॉम एनालिटिकल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. Stay tuned to my channel and please kindly subscribe to my channel. And if you have any queries, you can ask in the comment section. Thank you so much and stay blessed, all of you. Like, comment, and subscribe.